اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ کریم آپ نوازیں گے تو عرض کر سکوں گا، اپنے صفت نور اور صفت علیم سے مدد فرمائیے۔ قضا نمازوں کا بیان۔ بلا شرعی عذر نماز قضا کر دینا بہت سخت گناہ ہے۔ اس پر فرض ہے کہ اس کی قضا پڑھے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ قضا پڑھ لی پھر بھی سچے دل سے توبہ کرنا لازمی ہے۔ سوتے میں بھولے سے نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا پڑھنا فرض ہے، البتہ قضا کا گناہ اس پر نہیں ہوگا، لیکن جاگنے کے ساتھ ہی اور یاد آنے پر اگر مکروہ وقت نہ ہو تو اسی وقت پڑھ لے، بلا وجہ دیر کرنا مکروہ ہے۔ سو رہا تھا اور قضا ہو گئی نماز تو بس قضا پڑھ لے، گناہ نہیں ہے اس کا۔ قضا نمازوں اور وقتی نمازوں میں ترتیب ضروری ہے، جبکہ قضا نمازیں 6 سے کم ہوں۔ ترتیب تب ضروری ہے جب قضا نمازیں 6 سے کم ہوں، یعنی اس صورت میں پہلی قضا نمازیں پڑھ لے پھر وقتی پڑھے۔ جیسے آج کسی کی فجر و ظہر عصر مغرب قضا ہو گئی ہیں تو وہ عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ ترتیب وار ان چاروں کی قضا نہ پڑھ لے۔ ایک شخص پر کئی نمازیں ہیں، مثلا ایک شخص 15 برس میں بالغ ہوا، کیونکہ 15 برس کی عمر میں مرد و عورت بالغ ہو جاتے ہیں۔ اگر بالغ ہونے کی نشانیاں نہ بھی پائی جائیں تو بھی بالغ ہی تصور کیا جائے گا۔ اب 25 سال کی عمر تک نمازی نہیں بنا، اب اس پر 10 سال کی قضائے عمری ہے۔ اب اس کو ان 10 سال کی نمازیں قضا کرنی ہوں گی، ورنہ آخرت میں عذاب ہوگا۔ اب وہ ہر نماز کی فرض رکعتیں قضا کرے گا اور ساتھ میں 3 وتر بھی قضا کرے گا، یعنی دن بھر کی 20 رکعتیں قضا کرے گا۔ اسی طرح وہ جب سے بالغ ہوا ہے اس وقت سے لے کر جب تک کہ نمازی نہ بنا اس وقت کی نمازوں کا کاغذ اور قلم سے تخمینہ لگائے اور پھر قضا کرے۔ دن میں 20 رکعتیں بنتی ہیں، 17 رکعتیں فرض ہیں اور 3 وتر ہیں۔ قضا فرض کی بھی ہوگی اور وتر کی بھی ہوگی، سنت معاوضہ، غیر معاوضہ اور نفل کی نہیں ہوگی۔ قضاء عمری کی نیت اس طرح کرے کہ مثلا فجر کی نماز قضا کر رہا ہوں تو یوں کہے کہ 2 رکعت فجر کی جو میری زندگی میں پہلی قضا ہوئی ادا کر رہا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ جو بھی قضا نماز پڑھے گا، فجر پڑھ رہا ہے، ظہر پڑھ رہا ہے، عصر پڑھ رہا ہے، سب میں یہی کہے گا کہ جو زندگی کی سب سے پہلی فجر قضا ہوئی ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ ہر نماز کی اسی طرح نیت کرے۔ ظہر کی ہے تو ظہر جو میری زندگی میں پہلی قضا ہوئی، عصر کی ہے تو یا مغرب، عشاء یا وتر ہیں تو سب میں اسی طرح نیت کرے۔ قضاء عمری میں ترتیب واجب نہیں۔ اگر کسی پر سال 2 سال کی نمازیں قضا ہوئیں یا کم سے کم 6 نمازوں سے زائد اس کے ذمہ ہیں تو اس پر ترتیب واجب نہیں ہے۔ صاحب ترتیب وہ ہے یعنی جس کی 6 سے کم نمازیں، 6 سے زیادہ نمازیں ہوں تو پھر ترتیب واجب نہیں ہے۔ 6 سے کم نمازیں قضا ہیں تو پھر ترتیب سے پڑھے گا، پہلے فجر پڑھے گا، پھر ظہر پڑھے گا، پھر عصر، مغرب، پھر عشاء، ترتیب سے قضا کرے گا، کیونکہ یہ 5 تھی۔ 6 سے زیادہ قضا ہو گئی تو اب ترتیب واجب نہیں ہے، اب کسی بھی ترتیب سے کوئی بھی نماز پہلے قضا کر سکتا ہے۔ اگر آپ 10 دن کی ایک دن قضا کرنا چاہتے ہیں تو بھی اجازت ہے۔ ہر شخص پر کچھ نہ کچھ قضا نمازیں ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ اسے پڑھ لیں۔ جب سب نمازیں پڑھ لیں گے تو آپ صاحب ترتیب ہو جائیں گے۔
साहिब तरतीब का मतलब ये है कि जिसके ज़िम्मे कोई फ़र्ज़ नमाज बाकी ना हो। ऐसा शख्स साहिब तरतीब है जिस पर कोई फ़र्ज़ की क़ज़ा बाकी ना हो, और अगर हों भी तो 5-6 से ज़्यादा ना हो। बाज़ लोग शब कदर या आखिरी रमज़ान में जो नमाज़ें क़ज़ाए उम्री के नाम से पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि उम्र भर की क़ज़ा नमाज़ों के लिए काफ़ी है, ये बिल्कुल गलत है और बातिल ख्याल है। तो मैसेज आ जाता है ना हर साल, 4 रकातें पढ़ लें लैलतुल क़द्र में, या शब बरात या मिराज में पढ़ लें, पूरी ज़िंदगी की क़ज़ा नमाज़ें अता हो जाएंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बातिल ख्याल है। मुक़द्दस रातों में नवाफिल की जगह क़ज़ाए उम्री अदा करें। अक्सर लोग पूछते रहते हैं मैसेज करके कि आज शब मिराज है या शब बरात है तो क्या पढ़ना चाहिए नफली इबादत। तो पहले तो आप क़ज़ा पढ़ें। पहला दर्जा फ़र्ज़ का है, फिर दूसरा वाजिब का है, तीसरा सुन्नत मुअक्कदा का है, चौथा सुन्नत गैर मुअक्कदा का है और पाँचवां नफिल का है। आप 5वें दर्जे की नफल पढ़ रहे हैं और आपके ऊपर अभी क़ज़ा नमाज़ें बाकी हैं, तो क़ज़ा पहले पढ़ें। तो क़ज़ा नमाज़ें तो जो भी ऐसी रात है या जो भी ज़िंदगी में आपको सबसे पहले अपनी क़ज़ा नमाज़ें पूरी करनी चाहिए। मुक़द्दस रातों में नवाफिल की जगह क़ज़ाए उम्री अदा करें। याद रखिए कि जिसके ज़िम्मे फ़राइज़ हैं उसके नवाफिल कबूल नहीं होते। नमाज़ों को अपने वक्त पर पढ़ लेना अदा कहलाता है और वक्त के गुज़र जाने के बाद पढ़ना क़ज़ा कहलाता है। बाज़ शरई उज़र के नमाज क़ज़ा कर देना, बग़ैर शरई उज़र के नमाज क़ज़ा कर देना गुनाह कबीरा है और क़ज़ा शुदा नमाज को अदा करना फ़र्ज़ है। क़ज़ा पढ़ना भी फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ की क़ज़ा पढ़ना फ़र्ज़ है। तो फ़र्ज़ आपके पूरे नहीं हुए, आप नफिल पढ़ रहे हैं। जब फ़र्ज़ पूरे हो जाएं, अदा भी और क़ज़ा भी, फिर आप बेशक सुन्नत मुअक्कदा भी पढ़ें, नफिल भी पढ़ें, जो भी पढ़ना है। नीज़ ये लाजिम है कि सच्चे दिल से तौबा करें। सच्ची तौबा या हज मकबूल से ताख़ीर का गुनाह माफ़ हो जाएगा। अगर कोई सच्ची तौबा कर लेता है या उसने हज किया और उसका हज कबूल कर लिया अल्लाह ने, तो इससे जो उसने ताख़ीर की है उसका गुनाह माफ़ हो जाएगा। याद रखें, तौबा तब ही सही होगी जब क़ज़ा पढ़ ले। अगर क़ज़ा ना पढ़े और फ़कत तौबा किए जाए तो ये तौबा हकीकत में तौबा नहीं है, क्योंकि क़ज़ा नमाज़ें जब ज़िम्मे पर बाकी होंगी, गुनाह भी बाकी होगा, और जब गुनाह पर कायम है तो तौबा कहाँ हुई। हदीस शरीफ में है कि गुनाह पर कायम रहकर इस्तग़फ़ार करने वाला इस तरह है जो अपने रब से मजाक करता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शब कदर या जुम्मतुल विदा या किसी और मुबारक रात में 4 रकात क़ज़ाए उम्री की नीयत से पढ़ लेने से सारी उम्र की क़ज़ा अदा हो जाती है। ये बिल्कुल गलत है, बेहकीकत बात है। शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है। जिसके ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें हों उसको जल्दी से जल्दी पढ़ लेना वाजिब है, मगर बाल बच्चों की गुज़र बसर और अपनी ज़रूरियात की फ़राहमी नीज़ औरत के लिए अमूर ख़ानादारी की वजह से ताख़ीर जायज़ है। काम काज भी करें और जो वक्त फ़ुर्सत मिले इसमें क़ज़ा भी अदा करते रहें, यहाँ तक कि सारी क़ज़ा नमाज़ें अदा हो जाएं। क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी के लिए कोई वक्त मुअय्यन नहीं, जब भी पड़ेगा बरी ज़िम्मा हो जाएगा, मगर तलुए आफ्ताब, ग़ुरूब आफ्ताब और ज़वाल के वक्त ना पढ़े, क्योंकि इन 3 वक्तों में नमाज जायज़ नहीं है। क़ज़ा नमाज़ों का हिसाब यूँ लगाएं कि अगर वक्त बलूगत मालूम हो, यानी आप कब बालिग हुए ये वक्त आपको पता है, वो साल पता है, तो ठीक है। तो इस वक्त से जो नमाज़ें नहीं पढ़ी उसका हिसाब लगाना होगा। अगर वक्त बलूगत मालूम हो
तो उस वक्त से जो नमाज़ें नहीं पढ़ी उसका हिसाब लगाना होगा। अगर नमाज़ों का हिसाब कमरी साल से लगाएंगे तो उम्र का हिसाब भी कमरी साल से लगाएंगे। अगर बालिग होने का वक्त याद ना हो तो मर्द 12 साल की उम्र से और औरत 9 साल की उम्र से जो नमाज़ें नहीं पढ़ी इसका हिसाब लगाए। वैसे ये है कि मर्द हो या औरत हो तो 15 साल में तो हर सूरत में बालिग हो जाती है। तो किस तरीके से हिसाब लगाया जाएगा कि अगर आपकी उम्र इस वक्त 30 साल है, 30 साल आपकी उम्र है तो 15 आपको वक्त भी नहीं पता आप कब बालिग हुए थे, तो फिर पता था तो ठीक है, नहीं पता था तो 15 साल में तो मर्द हो या औरत हो वो बालिग हो जाएगा। तो 15 साल वो निकल गए, 30 साल अभी आपकी उम्र है, बाकी 15 साल रह गए। इसमें गौर व फिक्र करें कि कितने साल की नमाज़ें आपने पढ़ी हैं। जहाँ पे गालिब गुमान हो कि इतने साल की पढ़ी है, मतलब दिल जम जाए कि 5 साल की तो पढ़ी होंगी, तो 30 साल उम्र थी, 15 साल पहले निकल गए और 5 साल की आपने पढ़ी हैं, ये भी निकल गए। अब 10 साल की नमाज़ें आप कज़ा करेंगे। तो 10 साल की नमाज़ें जब आप कज़ा करेंगे तो कैसे करेंगे, मतलब फजर से लेकर इशा तक के सारे फ़र्ज़ पढ़ेंगे और इशा के अंदर 3 वितर वाजिब भी आप कज़ा करेंगे। तो हिसाब कैसे निकाला जाएगा। अब 10 साल की नमाज़ें कज़ा बनती थी मिसाल के तौर पे, तो 10 साल को मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से, तो ये दिन निकल आएंगे। तो ये कितने दिन निकले, 36। तो ये दिन निकल आया 10 साल के, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे आप, क्योंकि 5 तो फ़र्ज़ की कज़ा थी और 1 वाजिब की कज़ा थी, तो ये आपकी कज़ा नमाज़ें निकल आएंगी। तो इस तरीके से अपनी कज़ा नमाज़ों को अदा करना चाहिए। कज़ा नमाज़ों की अदायगी का तरीका। कज़ा नमाज़ों की अदायगी के लिए यूँ नियत करें कि सबसे पहली फ़जर जो मुझसे कज़ा हुई, सबसे पहली ज़ोहर जो मुझसे कज़ा हुई, इसी तरह जो कज़ा पढ़े उसका नाम लें और हमेशा इसी तरह नियत करे कि जो सबसे पहली कज़ा हुई, क्योंकि जब वो एक अदा कर लेगा तो अब दूसरी वाली ही कज़ा में पहले नंबर पर आ जाएगी। फ़जर पढ़ रहा तो ज़िंदगी की जो सबसे पहली फ़जर कज़ा हुई, अब उसको साल तो याद नहीं कि 2001 वाली पढ़ रहा हूँ, तो यूँ नियत करना लाजमी नहीं है। जो ज़िंदगी में सबसे पहली फ़जर कज़ा हुई, फिर अगले दिन दोबारा यही कहेगा जो ज़िंदगी में सबसे पहली फ़जर कज़ा हुई। क्यों, क्योंकि जब वो एक अदा कर लेगा तो अब दूसरी वाली ही कज़ा में पहले नंबर पर आ जाएगी। याद रखें कज़ा नमाज़ों की अदायगी में सिर्फ फ़र्ज़ और वितर अदा किए जाएंगे और ये 20 रकातें होती हैं, यानी 2 फ़र्ज़ फ़जर के, 4 फ़र्ज़ ज़ोहर के, 4 फ़र्ज़ असर के, 3 फ़र्ज़ मगरिब के, 4 फ़र्ज़ इशा के और 3 वितर इशा के। सुन्नतें मौक़दा हों या गैर मौक़दा हों, कज़ा में सुन्नतें नहीं पढ़ी जाती। और इसी तरह वो नवाफ़िल जो फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ पढ़ने का मामूल है वो भी कज़ा में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जिसके ज़िम्मे कज़ा नमाज़ें हों उसको चाहिए कि वक्ती नमाज़ों के साथ पढ़े जाने वाले नवाफ़िल की जगह भी कज़ाए उम्री पढ़े। नीज़ मुक़द्दस रातों यानी मसलन शब बरात या लैलतुल क़द्र या शब मिराज में जो सारी रात नवाफ़िल पढ़ने का मामूल है, यहाँ पे भी नवाफ़िल की जगह कज़ाए उम्री अदा करें। तो ये कज़ा नमाज का बयान था, इस पर अमल करें। अल्लाह इस पर अमल करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।